Okay, let's start. See, in last lecture we have discussed reflection, right? And reflection through plane mirror. Now, question is, does reflection takes place at curved surface also? And if yes, then does it follows laws of reflection at curved surfaces? So answer is yes. Reflection takes place at curved surfaces also. For example, suppose this is a curved surface, right? Irregular surface. If this side is polished and this side is uh, silver, so if a light is incident on this curved surface at this point, then this ray is once again known as incident ray. If you draw a perpendicular, sorry, a normal to the surface at this point, then this ray is known as normal ray. This is angle of incidence and this is reflected ray. So this is angle of reflection, and once again I is equal to R. So reflection curved surfaces पे भी होता है. It's not like only reflection takes place at plane surfaces only. In fact, curved surfaces से जब images form होती हैं तो बड़ी अजीब अजीब सी images form होती हैं. Funny images भी form होती हैं, right? अगर कभी आपने मॉल वॉल विजिट किया होगा तो you would have seen, right? और वो छोड़ दो, आप अपना सिल्वर स्पून ले लो, नॉर्मल स्पून, स्टेनलेस स्टील का जो स्पून होता है. Try seeing your face on from both the curved faces, right? That image is distorted. Image is distorted. Image is not proper. Right? You'll see the face, but it will be distorted, right? Not proper image is formed. As we see a proper image in plane mirror. Okay? Yes, sir. Now, we have spherical mirrors in our syllabus. Spherical mirrors. What are spherical mirrors? Imagine there was a spherical shell made up of glass. What? There's a spherical shell made up of glass, right? You cut it by some plane. So you cut it by some plane, see the smaller part of it. This is a smaller section, right? Now, this smaller section, if is silvered from outside or from inside. If is silvered from outside or inside. So if it is silvered from outside, then this inner surface acts as a spherical mirror. Or if it is silvered from inside, then this side acts as a spherical mirror, right? So these two are spherical mirrors. This is concave mirror and this is convex mirror. So I'll repeat, what is वापस बोलता हूं मैं. See, we are studying spherical mirrors, right? So spherical mirrors, what are spherical mirrors? If there is a spherical shell made up of glass, you cut it by some plane surface, take out the smaller part, right? Paint it from one side, polish it from one side, right? The other side works as a mirror, and since it is part of sphere, it is known as spherical mirror. This will act as a mirror, and since it is part of a sphere, it is known as spherical mirror. So if it is painted from outside, silvered from outside, then this inner surface acts as mirror, and there's a special name to it, concave mirror, right? Cave acts as a mirror, something like that, you can remember. I also used to forget, then I used to remember like this. So this is something like cave, right? So cave part is acting as a mirror, so it is concave mirror. And this is convex mirror, right? This side is acting as a mirror. Here, this side acts as a mirror.
So this mirror is known as convex mirror. Clear? Yes, sir. Okay. Now let's Yes, discuss sir. the term. Now let's discuss the terms in it. First is, let me detail the mirror first. Let's take concave mirror and detail it. Suppose this is a concave mirror. Concave mirror. Right? Suppose this is a concave mirror. Definitely this was part of some sphere, right? Let us assume that this was part of the sphere. So if it was part of the sphere, then center of this sphere, there must be some point which will be known as center of the sphere. So center of the sphere is actually center of this mirror. I'll repeat, center of the sphere is actually center of this mirror. Got it? Hello? Yes, sir. Okay. So center of the sphere of which this mirror is part, right, is known as center of the curvature. So this point is C. C stands for center of curvature. Right. Now see, this mirror is symmetrical about this line. Right. This line exactly divides into two symmetric parts. Right. So this mirror is symmetric about this line. So this line is known as axis. So this line is known as axis. So axis of mirror. What is that? Axis of mirror is the line about which this mirror is symmetrical, right? The point where this axis cuts the mirror is known as pole. So P you can call as pole, right? It is also the geometric center of the mirror, right? It is also the geometric center of the mirror. Okay. Now, there's a laws of reflection in case of laws of reflection. Question is laws of reflection valid? Is laws of reflection, so are laws of reflection valid in case of mirror? The answer is yes. Let us try to figure out special rays and try to understand in which direction they should move. So first one, consider a ray passing through center. I'll repeat. See, what I'm trying to explain here is, question is, are laws of reflection valid in case of concave mirror? Answer is yes. If the phenomena is reflection, then laws of reflection are applicable. ठीक है. अभी कुछ स्पेशल रेज हैं. There are some special rays. उनके रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट रे? First ray is the ray which passes through center of curvature. So consider a ray passing through center of curvature. Consider a ray passing through center of curvature. ठीक. Any line which passes through center of curvature, don't you think will be normal to the spherical surface? Hello? Is everyone listening? Yes, sir. Yes, sir. जो सेंटर से पास होगा वो सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को पक्का नॉर्मल होगा. एंड इफ यू रिमेंबर,
when I have explained what is a normal ray, at that time I said normal ray is the only ray which suffers no deviation. It does not leaves its path. I'll repeat, normal ray is the only ray which suffers no deviation. Shall I repeat? Hello. Yes sir. तो सर नॉर्मल इसका रे मतलब होगा जैसे सर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पूरी लेंथ में हर 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 एक पॉइंट नॉर्मल बनेगा मतलब सर, क्योंकि यस वो यस हमने परपेंडिकुलर होता है रेडियस, हाँ सर्कल में हमने सर्कल पढ़ के रखा किसी है। भी पॉइंट से रेडियस हाँ परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो वो लॉजिक है। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे अगर आप रेडियस ड्रॉ करोगे तो वो नॉर्मल होगा। तो जो रे है एक सेंटर से जो रे निकलती है वही पाथ पे वापस आती है। ठीक, ये रे हो गई, ये रे हो गई वापस आई, ये रे हो गई वापस आई, ये रे हो गई वापस आई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो सारी वापस आती है उसी पाथ पे। ऑलराइट, so consider ray passing through center of curvature. If sorry, any line passing through center of curvature is radius and hence normal to the surface. Yeah, any line passing through center of curvature is radius and hence normal to the surface. वो surface के normal होती है, right? And normal suffers no deviation. And normal suffer no deviation. बराबर है? नॉर्मल क्या करता है? कोई भी डिविएशन सफर नहीं करता। ठीक है? Hence after reflection ray passing through center traces back its path. जिस पाथ से गई थी वही पाथ से वापस आ जाए। So traces back its path. Is it clear? कुछ स्पेशल रेज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे कुछ खास रेज के लिए। एक रे मैंने क्या बोली आपको, कहां से पास करी? सेंटर से। तो सेंटर से जो भी पास होता है, जो भी सेंटर से पास होगा वो क्या होगा? सरफेस के को रेडियस होगा। और रेडियस क्या होता है? नॉर्मल टू सरफेस होता है। नॉर्मल की क्या स्पेशलिटी होती है? नॉर्मल सफर्स नो डिविएशन। उसके लिए आई भी जीरो है, हेंस आर भी जीरो होता है। जिस रास्ते गई वही रास्ते वापस। ठीक है, अगली खास रे है रे पैरेलल टू द एक्सिस। अब देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज बताने वाला। आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन अ स्फेरिकल मिरर और नॉट। तो स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा दिखता नहीं है, वो एक्चुअली आई डोंट हैव एनीथिंग। डिश देखिए आपने, डिश ऐसे बोला ऐसा एक बर्तन ऐसा, ये डिश है, जैसे इसमें पानी भरने के लिए मैंने रख रखा। डिश देखा है ना सबने? और इफ यू हैव सीन लेंस देन इट्स वेरी गुड। अदरवाइज कई बच्चों को मैंने देखा है इमेज ऐसे बन जाती है, मिरर ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिश जैसा होता है, राइट? एक ऐसा डिश होगा, बर्तन जैसा समझ लो, जिसमें आप पानी रख सकते हो। बस वही है लेंस। मिरर अंदर साइड अगर पेंट कर दोगे तो कॉन्वेक्स मिरर, बाहर साइड पेंट कर दोगे तो अंदर साइड हो गया वो कॉनकेव मिरर, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो लेंस आप देख रहे हैं ऐसा नहीं, इसका कर्वेचर आप ध्यान से टच करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कर्व्ड है। अदरवाइज ऐसा फ्लैट ही दिखाई देता है, तो बहुत कम कर्व्ड होता है। मतलब उसका सेंटर जो है मतलब ऐसा नहीं होता वो,
वो एक्चुअली बहुत बड़े स्फीयर का समझो ऐसा पार्ट है। यूजुअली आपके लैब में जो मिलेंगे ना, जो लैब में होंगे, उनका रेडियस जो होगा 50 सेंटीमीटर के आसपास होगा। 50 सेंटीमीटर कितना था, हाफ ऑफ द मीटर, इतना। ऐसा छोटा सा स्फीयर होगा, ऐसा रहता है। ऐसा ही बड़ा सा स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालते हैं। पता नहीं आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। यूजुअली जो स्फीयर का रेडियस होता है वो साइज ऑफ मिरर से बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होगा कि इतना छोटा सा मिरर है और ऐसा काट निकाला, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, बहुत बड़ा मिरर होता है और उसका एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालते हैं ऐसा। 1 मीटर डायमीटर से 1 मीटर डायमीटर का होगा और उसका छोटा सा पार्ट करके, तो नियरली वो स्ट्रेट ही आपको नजर आता है। अनलेस अंटिल यू टच इट, इट अपीयर्स स्ट्रेट। ठीक है, हमारी बात समझ में? यस सर। ओके ना, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट जैसा दिख रहा है आपको। इसका रेडियस यहाँ पे इसका रेडियस। एक ऐसी रे लेते हैं विच इज क्लोज टू दिस एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके पैरेलल लिया मैंने, एक्सिस के पैरेलल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। बस इतने ही एंगल पे कट करके मैं निकालूंगा इसका, राइट। तो ये हो गया आर, राइट, ये हो गया आर। अब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है, अभी आप सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, ठीक है, ये जो एंगल है इसका डबल ये है, इसका डबल ये। क्यों? ये x है, ये भी x है, तो ये 2x है। ये x है ऐसा, ये x है तो ये x है, ये पूरा 2x है तो ये भी 2x है। ठीक है, so this angle is double of this angle, and ये जो डिस्टेंस मिलेगा आपको, ये डिस्टेंस, ये इसका आधा मिलेगा, तो ये r है, तो ये r/2। कुछ नहीं समझ में आ रहा? सर समझ आ गया। सर आप फोकल लेंथ पे आ रहे हैं क्या? हाँ, फोकल लेंथ पे। सर मैंने तो बुक रीड की है तो समझ नहीं आ रहा था, बस नाम याद हो जा रहे थे कि क्या 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 चीज क्या है। ये R सेंटर इक्वल ऑफ टू 2s, कर्वेचर है। बस इतना याद हुआ। हाँ, तो ये देखो, ये है x, तो ये x, ये है 2x, तो ये हो गया 2x, राइट। तो ये एंगल जो है इसका डबल है, ये इसका डबल है, राइट। तो हायर सिलेबस में आप 2 रूल पढ़ोगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी आप पढ़ोगे, उसमें भी आपको सीखने मिलेगा कि ड्यू टू दिस रीजन दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ दिस डिस्टेंस, राइट। आ रही बात समझ में? Yes, sir. तो ये अगर r है तो ये r/2 है। इज इट ट्रू फॉर एनी सच रे? यस, इट इज ट्रू फॉर एनी सच रे। अगर ये होता है तो ये ऐसा होगा, ये I है, ये उसका डबल, नहीं, इसका डबल ही एंगल हो गया, तो इसका आधा ये ऐसा है, हाफ, राइट। तो क्वेश्चन इज इट ट्रू फॉर एवरी रे? यस, नॉट फॉर ऑल, बट जितने साइज का मिरर आपके हाथ में मिलेगा ना उसके लिए तो चलता है। इफ दिस मिरर वॉज ऑफ लार्ज साइज, तब ये चीज यहां नहीं आती थी, तब ये चीज कहीं और चली जाती थी। ठीक है, क्यों तो सर? एक वर्ड होता है, सर वो अगर एक्चुएटर। मिरर लार्ज हो जाएगा तो सर उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। मतलब देखो ना, फिर वहां पे प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकलेगा। एक्चुअली क्या होता है, वो हायर सिलेबस में प्रूफ है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। ये चीज अप्रोक्सीमेट है, जो फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली r/2, एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू r/2 फॉर पॉइंट्स या रेज, फॉर रेज close to axis, we call them para-axial rays,
फॉर रेज क्लोज टू एक्सिस। सर नहीं पढ़ना सर, नाम ही से कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ, अरे नहीं समझ में आया। फॉर रेज क्लोज टू, आपको उसका रीजन नहीं समझ में आएगा, बट ये चीज याद रख सकते हो। तो फॉर रेज क्लोज टू एक्सिस उनको बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। पैराएक्सियल रेज एफ इज नियरली सेम एज r/2। ये जो डिस्टेंस है ये, एक्चुअली एफ तो बताया नहीं क्या था, चलो फिर बताता हूँ। इससे पहले इसको रब कर देता हूँ फिर बताता हूँ। सो अभी स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। जो लाइन इसके पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके इसको यहाँ पे कट करती है। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं एफ और इसको लिया ओ। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखूंगा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनी रे which is parallel to axis, which is parallel to axis, meets axis after reflection at fixed point. Fixed point is known as fixed point is known as fixed point is known as focus. And also OF is known as focal length. Focal length. And OC is radius. इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल आर से। एंड आर इज इक्वल टू 2f। आर इज इक्वल टू, समझना बात को। ठीक, कोई भी रे जो एक्सिस के पैरेलल जाएगी, एनी रे विच पासेस which goes which is incident on the spherical mirror parallel to the axis, ये एक्सिस थी, एक्सिस के पैरेलल जो भी रे जाएगी वो सब रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ही पॉइंट से जाती है। ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही। तो सारी रेज जो भी एक्सिस के पैरेलल है वो सब रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होती है। दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। Is it clear? Yes, sir. And the distance of the focus from pole is known as focal length. Focal length. Distance of center from the pole is known as radius. And what you have to remember is r is equal to 2f. R is equal to 2f. सर इस बुक में सर एक जगह पे दिया हुआ है, sorry aperture is, सर शायद ये था कि कर्वेचर जो है सर वो अपर्चर से ज्यादा नहीं है, या फिर सर कर्वेचर अपर्चर से ज्यादा है। वही मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था। ये जो ओपनिंग होती है ना, ये स्फीयर ऐसा होगा, ये जो चीज है इसको बोलते हैं अपर्चर। ये सर अपर्चर तो जानता हूं, पर कर्वेचर ज्यादा बहुत कम होता है। नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, कर्वेचर कम होता है किसी चीज। हाँ, ये जो है ना इसका कर्वेचर कम है, ये बहुत कर्व्ड हो गया, बहुत कर्व्ड हो गया। जितना कम कर्वेचर रेडियस उतना ज्यादा। यही तो मैं समझा रहा था कि ये बड़े स्फीयर का, हमारे सिलेबस में दिया है, वो 50 सेंटीमीटर डायमीटर इतने बड़े स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट करके निकालता है। तो कर्वेचर aperture, this size is known as aperture. This is less, whereas this radius is large. ओके सर, समझा? सो एपर्चर जो है ना, मतलब हम लोग छोटा, इस क्लास में सर अलग मिरर्स को पढ़ेंगे, अलग मिरर्स और अलग लेंसेस को। हायर सिलेबस में भी यही पढ़ाया जाता है कि एपर्चर इज स्मॉल, रेडियस इज लार्ज। हायर सिलेबस में भी वही होता है। बस हाँ, थोड़ी सी एडिशनल चीजें बता दी जाती हैं। क्या बता दिया जाता है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। इससे प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर मैंने ऐसा बहुत ज्यादा कर्वेचर वाला, ऐसा एकदम कर्व्ड मिरर बना लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली इन मिरर्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती।
ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं, इनका रेडियस यहीं पे, ये वाली रे कहीं और फोकस होंगी, ये वाली रे कहीं और फोकस होंगी। ये इसको बोलते हैं पैराएक्सियल रे, जो एक्सिस के पास होती है, पैराएक्सियल रे। ये तो बराबर जाती है, ये एक पॉइंट से पास हो, एक कॉर्नर से जो निकलती है इनको बोलते हैं मार्जिनल रेस। तो मार्जिनल रेस के साथ चक्कर क्या है, दे फोकस एट सम अदर पॉइंट whereas paraxial rays focus at some other point। ठीक है, तो आप एक काम करो भाई, आप इसको इतना छोटा कर दो काट के, इसको ऐसे घिस 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 इतना छोटा कर दो बीच में, तो उसमें जो रेज है उसमें पैराक्सियल रेज ही है। तो ये एजम्पशन के साथ ही हम हायर सिलेबस में पढ़ते हैं। हायर सिलेबस में कोई अलग सी चीज नहीं आती, यही एजम्पशन रहता है वहां पे। ओके सर। हेलो, तो पैराक्सियल रेस के लिए दिस इज ट्रू फॉर पैराक्सियल रेस, बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर मार्जिनल रेस। बट हम मिरर ही ऐसा बनाते हैं, ये बड़ा सा हिस्सा था, छोटा सा पार्ट कट करते हैं, तो जो रेज आ रही है वो सब पैराक्सियल ही होती है, राइट। हाँ, यही अगर बड़ा सा मिरर में लेता था, इतना बड़ा, नहीं तो यहाँ वाली रेस कहीं और फोकस होती थी और यहाँ वाली रेस कहीं और फोकस होती थी। ओके, क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ फोकस का। तो क्या इंट्रोडक्शन में मिला हमको? एनी रे विच इज पैरेलल टू एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a fixed point. That fixed point is known as focus, and special thing in focus is its distance from the pole, which is also read as focal length, is half of the radius of curvature, is half of the radius of curvature. Clear? Okay. Now third ray. Third one. Question is, what if a ray passes through the focus itself? This is focus, this is center. You said this ray, any ray which is drawn parallel to the axis passes through focus. Now my question is, what if a ray is already passing through focus and is made incident on the spherical mirror, concave mirror? What will happen to that? तो यहाँ पे लगता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जिस रास्ते लाइट गई थी वही रास्ते वापस आएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। इफ दिस इज इंसिडेंट रे, this is reflected. So if a light is made incident along this path, then this is reflected. See, principle of reversibility of path of light says what? It says if a light is made incident along the path of reflected wave, this is reflected wave. If a light is made incident on mirror along the path of reflected wave, then after reflection it will follow the path of incident. पहले ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड, अगर इधर इंसिडेंट कर दिया तो इधर रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? यस सर। अगर आप वापस समझा सकते हैं। See, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट क्या लिखा हुआ है? लाइट कुछ भी करे, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, घूम घाम के जहां से ऐसे गई, नहीं तो ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे, अब रिटर्न जब आएगी आप ऐसे डालोगे लाइट को तो पूरा पाथ अपना वापस फॉलो करेगा। हेलो, Yes, sir. समझा। तो अगर ये इंसिडेंट था तो ये रिफ्लेक्टेड, तो ठीक है ना। अगर इधर इंसिडेंट डाला तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया। तो कोई लाइट रे अगर फोकस से पास होगी तो वो किधर से निकलेगी? वो एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। तो इसका कंक्लूजन क्या है? इफ एनी रे is made incident on mirror through focus,
through focus after reflection it becomes parallel to axis. If any ray is made incident on mirror through focus after reflection it becomes parallel to axis. Is it clear? Yes, sir. So these are three special rays. One which passes through the center. जो रे सेंटर से आएगी वही रास्ते में वापस जाएगी, कोई मुड़ने की जरूरत नहीं. One which was made incident along, parallel to the axis, वो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है. That point is known as focus. ये रेडियस, ये इसका हाफ. Any ray which passes through focus after reflection becomes parallel to the axis. So these are three special rays which we'll be using continuously to trace the image of a point. Okay, clear है? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर के बारे में, नहीं? ना, कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? बस वही सारी कहानियां इसमें भी हैं. बस उसकी जो तीन स्पेशल रेज हैं उनको हम समझ लेते हैं. तो इफ इट वाज अ कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा एक मिरर है, ये इसका रेडियस यहाँ होता है, इसका रेडियस यहाँ होता है एंड इसका फोकस यहाँ कहीं होता है, इसका फोकस यहाँ कहीं. ठीक. तो पहली रे जो सेंटर से एक्सपेक्टेड थी जाना वही वापस आ जाएगी. एनी रे which was expected to pass through the center will trace back its path. क्यों? क्योंकि वो सरफेस के नॉर्मल है. नहीं समझा? हेलो. यस सर. समझा ना? यस सर, थोड़ा बहुत. अरे सी, अभी मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने दिखाया आपको कॉन्वेक्स मिरर, मतलब इस साइड इसका पेंटेड है, सिल्वर्ड है, ये साइड आपका रिफ्लेक्टर है, राइट? इधर से रिफ्लेक्ट होने, तो ये रे जाने वाली थी यहाँ, राइट? तो यहाँ नहीं जाके रिफ्लेक्ट होके वापस वही पाथ में आती. सर क्योंकि सर वो 90 डिग्री पे आ जाता है ना सर, सेंटर कर्वेचर. नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो ये खुद ही नॉर्मल है. नॉर्मल रे इज द ओनली रे व्हिच सफर्स नो डिविएशन, इट डज नॉट लीव्स इट्स पाथ. जिस पाथ पे था वही पाथ पे वो चलता है, राइट? तो वो वापस चला जाएगा. ठीक है. सेकंड, अगर कोई रे ऐसे जा रही थी, कैसे? एक्सिस के पैरेलल, तो उसको कहाँ जाना चाहिए था? फोकस के पास. तो फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी. तो फोकस पे जा तो नहीं सकती, वो फोकस से निकलते हुए दिखाई देगी. देखो समझ लो, सही लिखा है सर. ऐसा कैसे होगा सर? फोकस का क्यों? क्योंकि सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ना नापते हैं. क्या क्या क्या? ये अगर आप ऐसा एंगल निकालोगे सर, फोकस पे क्यों जाएगी? यस सर. बेटा वही तो प्रॉपर्टी. हाँ सर, ये मेरे को तो लगा सर फोकस पे क्यों जाएगी. तो फोकस से ही जा रही है ना बेटा, ये देखो ना, देखो आपको नहीं मालूम कहाँ जाएगी. ठीक, मान लिया अपन. ये आई इंसिडेंट रे, तो हमने तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जानना है. मुझे पता नहीं कि ये रे कहाँ जाएगी. ठीक, तो कैसे पता करोगे? आप उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे. यस सर, नॉर्मल ड्रॉ करके सर. लेकिन सर इसको प्रॉपर्टी होगी ना सर कॉन्वेक्स मिरर की. वो प्रॉपर्टी तो कॉमन है. सी, सब कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से चल रहा है. ये तो आपका काम आसान करने के लिए उन्होंने बोल दिया भैया ये याद कर लो, ये प्रॉपर्टी है. अदरवाइज सब कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही चल रहा है, नहीं? तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है? यू हैव टू ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे. तो आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. नॉर्मल क्या होता है? लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर इज नॉर्मल टू द सरफेस. तो ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया. तो अब ऐसे जाएगी ये एंगल आर हो गया. ये और ये एंगल इक्वल है, तो बराबर उसके आधे से ऐसा लगे जैसे यहां से निकल के आ रही.
ओके नहीं सर, मजा समझ आया। आ गया सर, समझ आ गया सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल से शायद हो जाएगा। हाँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, राइट, ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, ये इसका आधा है, तो ये डिस्टेंस इसका डबल है। वो थोड़ा ओके सा, हाँ, हायर सिलेबस में एग्जैक्ट प्रूफ आपको पढ़ने मिलेगा, अभी तो फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, समझा? यस सर। यस सर। गुड। तीसरी रे, जो फोकस से जा रही थी, सॉरी जाने वाली थी, जो फोकस की तरफ जा रही थी या फोकस से जाने वाली थी, वो रिटर्न ऐसे हो जाती, एक्सिस के पैरेलल हो जाती। सो तीन रेस, स्पेशल रेस जो हमने कॉनकेव के लिए पढ़ी थी, वही तीनों स्पेशल रेस आपको पढ़नी है किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। तो तीन स्पेशल रेस हैं किसके लिए? कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। अब जाओ, सब समझो, एक बीम ऐसे ऐसे आ रही थी, आपको नहीं लगता ऐसे फैल जाती है? ऐसे आ रही थी, ऐसे फैल गई, ये एक रे जाएगी, ऐसे ऐसे फैल जाएंगी, तो जाएगी ऐसी रे, निकलेगी ऐसी रे, स्प्रेड होके आएगी। से यस सर, समझा। हाँ, तो जाके ऐसे ऐसे फैल गया रही, डाइवर्ज हो रही है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। वेयर एज कॉनकेव मिरर में हमने देखा था सारी रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये रेस को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, तो दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। सर मेरा एक डाउट था। हाँ बिल्कुल, पूछो। सर मैम ने बताया था कि ये टॉर्च में या फिर हेडलाइट्स में कार के मतलब हाँ, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, उसके सामने करेक्ट। फोकस पे बल्ब रखते हैं। एक्चुअली वो परफेक्टली स्फेरिकल होता नहीं है, वो होता पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, पैराबोलिक होता है। अगर आप बाइक के सामने जाके देखोगे ना कैसा रिफ्लेक्टर, तो आपको पैराबोला जैसा दिखाई देगा, वो सर्कल नहीं होता, पैराबोलिक होता है। तो पैराबोला की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वैसे तो यहाँ इसकी भी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी। अगर आपने यहां से रे ऐसे निकल रही थी, ऐसे जा रही थी, राइट, तो इनको उसने पैरेलल बीम बना दिया, ऐसे जैसे फैलना भी चाह रही थी उनको सीधा कर दिया, राइट। तो अब ये जो बीम है, पहले एनर्जी ऐसे फैल रही थी हर डायरेक्शन में, अब उस इधर उधर जो लाइट आ रही है उसको सीधा कर दिया उसने। तो सीधा कर देने से क्या फायदा हो गया? आपकी लाइट दूर तक जाएगी, बीम इंटेंस हो जाती है। पर सर ये कॉन्वेक्स मिरर भी यूज कर सकते हैं ना उसकी जगह पे? वो तो लाइट को ऐसा फैला देगा, पूछो मत। कहीं आपने यहां रख दिया तो ये लाइट ऐसे आ रही थी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे हो जाएगी, फिर तो हो गया सत्यानाश, फिर तो कुछ ना दिखने वाला। वो तो जरा सा आगे जाके ये लगता है स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में पीछे ऐसा लैंप लगता है, उससे क्या फायदा होता है? लाइट फैल जाती है। मुझे स्ट्रीट लाइट में लाइट कन्वर्ज नहीं करनी है, डाइवर्ज करनी है, फैलानी है कि ज्यादा एरिया कवर हो सके। और बाइक या कार के हेडलाइट में मुझे लाइट कन्वर्ज करनी है, दूर तक लाइट जानी चाहिए, फैलनी नहीं चाहिए। ओके सर, समझा। समझा? यस ओके, सर। तो ये दो, हाँ, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ओके, मिरर, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। अब देखो, चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, तो आई होप आपको याद होगा इमेज फॉर्मेशन का क्या तरीका था। या पहले ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस याद है? ऑब्जेक्ट और इमेज में डिफरेंस,
बिफोर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जहां से लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां से लाइट आती हुई लग रही है या आ रही है वो इमेज है। समझा? रिफ्लेक्शन Yes, के sir. पहले वो ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां से आ रही है वो इमेज है, खत्म हो गया। ठीक है। सो इमेज ट्रेस कैसे करते हैं? लेट अस अज्यूम ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते पहले। ठीक, इसकी इमेज कहां बनेगी, कैसे पता चलेगा? ये बिल्कुल रे आपके टेक्स्ट डायग्राम। बुक में नहीं दिया। हाँ, ये बिल्कुल आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। तो अभी कैसे पता चलेगा? आपने बोला रे डायग्राम, चलो बनाओ। कितनी रेज निकालोगे आप यहाँ? मिनिमम 2 तो निकाल सकते हैं ना? मिनिमम 2 निकाल सकते हो। एक कौन सी निकाल लो? यही जो सेंटर से आ रही है, ऐसे जान लो। ये यहाँ गिरेगी, फिर उसके बाद क्या होगा उसका? सर वापस चली जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और कहां से लाऊं? सर एक्सिस के एक पैरेलल तो वही हो रिफ्लेक्टेड है गया। सर, पैरेलल वाला। कहां से बनाऊं तो पैरेलल? तो यही तो, इस पॉइंट से कहां से पैरेलल ओके निकालूं? सर थोड़ा तो ऊपर से। ठीक है। हाँ, थोड़ा ऊपर से मतलब ऐसे नहीं कर सकता मैं, मुझे यहीं से निकालनी ना, इसी की तो रे निकल रही है। ओके कहीं से भी सर। बना दो, लो बना दिया। ये इंसिडेंट रे, अब ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? सर पैरेलल हो जाएगी। क्यों पैरेलल हो जाएगी? ये फोकस से थोड़ी ना निकल रही है जो नो पैरेलल हो सर, जाएगी। पैरेलल पैरेलल नहीं होगी सर, पैरेलल। फिर क्या होगी? सर वो होगी सर, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब वापस चली जाएगी। फिर हाँ, सर उसी पाथ फिर में, इसी पाथ में। हाँ। ये सर उसी पाथ से वापस हो जाएगी। नहीं सर। उस पाथ से सिर्फ वही रह जाती है जो सेंटर से निकलती है। अगर ये सेंटर से आ रही होती तो वापस जाती, ये अच्छा क्यों वापस सर, जाएगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर लगने लगा था, सॉरी सर। नहीं, वो ऐसी सर समझा था। फिर वो पैरेलल हो ऑब्जेक्ट है। सकती है सर, पैरेलल हो सकती है सर, क्यों पैरेलल पैरेलल हो जाएगी? होगी वो तो फिर ये। फोकस से पास थोड़ी ना रहे। नहीं, पैरेलल तो तब होती है जब फोकस से पास होती। सर कहीं पर भी चली जाएगी। कहीं पर भी चली जाएगी? कहीं पर भी कैसे जाएगी? तो इसके लिए आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा मेरा नॉर्मल, ठीक। बस इसी से इतनी ही एंगल बनाते हुए, जितना ये है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जितना एंगल है ना, उतना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। यहां कहीं पे इमेज बनेगी। तो कहने का मतलब डरने की बात नहीं है। यू हैव टू स्टिक टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको बेसिक में जाके सोचना। एग्जाम में कल को आपको एक ट्रिक क्वेश्चन आ गया, ठीक, वो लोग बोलेंगे, और अच्छे मतलब मैंने देखा है कुछ अच्छे एग्जाम्स में पूछते हैं वो लोग ऐसे एक डायग्राम बना देते, रे डायग्राम, हाफ रे डायग्राम बना देंगे, ऐसा बना दिया, ठीक है, बता देंगे ये फोकस है, ये और एक रे दिखा देंगे ऐसे निकलती हुई, बोलेंगे ये इंसिडेंट रे, ट्रेस इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप बोले अरे ये क्या आ गया, ये तो हमने देखा ही, कोई पढ़ा ही नहीं, ना तो ये पैरेलल हो रहा है ना तो वापस आ रहा है, कहाँ जाएगा? तो भाई आप नॉर्मल ड्रॉ करो, प्रोटेक्टर लो, ये एंगल मेजर करो, बस उतना एंगल मेजर करके यहाँ पे दे दो, दिखा दो कि ये आई है, ये आर है, आई इज इक्वल टू आर करके यहाँ पे मेजर जाएगा। समझा? So you have to stick to laws of reflection. Clear है? यस सर। तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया, ठीक है। एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट देता हूं, आप बताना इमेज कहां बनेगा अंदाजे से। ये फोकस लिया मैंने, ये सेंटर लिया, यहां रखा ऑब्जेक्ट, कोशिश करो 2 रेज निकलनी है वहां से, फिर चेक करना आपको रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रेज कहां मिल रही हैं या कहां से आती हुई लग रही हैं। सर समझा नहीं, जरा वापस बता सकते हैं? ये फोकस है, ये सेंटर है, मैंने एक ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ डॉट लगाया, इसकी इमेज कहां बनेगी आपको बताना है।
सर बिहाइंड द मिरर। हाउ विल यू नो? सर पहली कैसे बात पता चला वो? सर पहली बात तो वो ये नॉर्मल की वजह से ये मतलब क्या बोलते हैं राइट साइड की तरफ स्लैंट हो जाएगी। मैं तो आपकी जगह हूंगा तो मैं तो 2 रे बनाऊंगा। एक ये रे बनाई, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया ऐसे, ठीक है। फिर एक ऐसी रे बना दी। अब मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ जाएगी, ठीक है। मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर ज्वाइन किया, ये नॉर्मल है, ये आई है, बस उतने एंगल पे आर बना दिया। अच्छा, ये 2 इंसिडेंट रेस थी और ये 2 रिफ्लेक्टर रेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ कहीं से आ रही है, यहाँ कहीं से आ रही है। बस ये इमेज। नहीं समझा? हाँ सर समझा। यस सर। का गुड। सर वो तो आई में कहाँ चलेगा सर? इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, कैपिटल ओ ओके सर। कैपिटल आई, ये सिंबल्स यूज होते हैं बुक्स में भी, मैं भी यूज करूंगा। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड आई स्टैंड्स फॉर इमेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी ट्रेस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वहां से 2 रेज आप निकालिए, एक निकाल दो सीधा सीधा, जो ऐसी गई ऐसी वापस आ गई। दूसरी निकाल दो एक एंगल पे, ये जिस एंगल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उस टाइप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट वेव्स हो गई और ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हो गई, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे दोनों रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिल रही हैं या जहां से निकलती हुई लग रही हैं उसी को तो इमेज कहते हैं, और रिफ्लेक्शन के पहले जहां से निकल रही हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट? हेलो, आ रहा है Yes, समझ sir. में? Yes, sir. गुड। चलो आई विल स्टॉप हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाना सीखते हैं, ठीक। ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कैसे बनेगी वो देखा हमने। प्लीज घर पे आज अच्छे से पढ़ना, बुक भी रीड करना और लिखना, समझने की कोशिश करना कि मैंने क्या समझा, ठीक है। Okay, sir. चलो अच्छा। Thank you, sir.